وہ کون سی شے ہے جو جیب میں ہو تو دل خوشی سے جھومے اور جیب اس سے خالی ہو تو دل غم کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگے؟ انسانی زندگی کا ایک ایسا بنیادی جزو جس پر آج زندگی کے سفر کا دار و مدار ہے، یہ اہم ترین جزو ہے پیسہ۔ پیسے کا سفر ایک معجزہ ہے جو زمانوں کے دھندلکوں میں گم ہونے کے باوجود ہمیشہ ایک نیا راستہ تلاش کرتا ہے۔ یہ خوبصورت داستان ہے جہاں سکوں کی کھنک، کاغذی نوٹوں کی لچک اور کرپٹو کرنسی کی چمک سب ایک نئے دور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پیسہ صرف ایک مادہ نہیں بلکہ انسان کی آرزو، محنت اور تقدیر کا عکس ہے۔ یہ ایک ایسا دریا ہے جو ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کبھی سکوں کی شکل میں، کبھی کاغذ پر اور کبھی ڈیجیٹل دنیا کی گہرائیوں میں۔ پیسہ ہر دور میں انسان کے خوابوں کی تکمیل کا وسیلہ رہا ہے اور اس کا سفر وقت کے ساتھ ساتھ ایک نیا مفہوم اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ ایک زبان ہے جو بغیر الفاظ کے بھی دنیا بھر میں سمجھی جاتی ہے، اور اس کی سرسراہٹ ایک شاعری ہے جو انسانوں کی تقدیر کا تعین کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے پیسے کے تاریخی سفر کی، ایک ایسا سفر جس کی منزل دولت، تجارت اور معیشت کے نظام کی تشکیل ہے۔ اس سفر کا آغاز قدیم زمانے میں ہوا اور آج اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے۔ دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کی کرنسیز کا استعمال ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ پیپر کی فارم میں کرنسی کا اجرا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جب اگلی سٹیج آئی تو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور ایکسپریس کارڈ وغیرہ میں کرنسی جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہوا۔ پیسہ ایک ایسی چیز جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود بھکاری سے لے کر بلینئر تک ہر کوئی اسے پانا چاہتا ہے۔ اور یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس نے جنگل میں رہنے والے انسانوں کو بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے پر اکسایا۔ لیکن پیسے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے، یہ ہم جانتے ہیں اس کہانی میں۔ پیسے کی تاریخ اس کی تعریف کی طرح ہی متنازع ہے۔ معاشی ماہرین اس پراسرار وقت کے بارے میں الگ الگ نظریے رکھتے ہیں۔ جب پیسے کا نظام متعارف ہوا تو کہا جاتا ہے کہ پہلا سوال جو انسان نے خود سے کیا وہ تھا، ہم اپنے سامان کا تبادلہ کیسے کریں؟ اس کھوج میں لگے انسان نے ابتدا میں اشیاء کا تبادلہ شروع کیا۔ سونے، چاندی، تانبے اور مٹی کی چیزوں اور دیگر اشیاء کی شکل میں لین دین ہوا کرتا تھا، لیکن یہ نظام ہمیشہ اتنا پیچیدہ ہوتا تھا کہ انسانوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جسے سب کہیں نہ کہیں مانے، جو قابل اعتبار ہو اور جو ہر کسی کے لیے ایک پیمانہ ہو۔ اور پھر تقدیر نے ایک انقلاب لایا جب 5000 سال قبل مسیح میں میسوپوٹامیا یعنی موجودہ عراق میں سونے اور چاندی کی شکل میں پہلا دھاتی سکہ متعارف کرایا گیا۔ وہ سکہ نہ صرف دولت کا نمائندہ تھا بلکہ اس کی دھات کی قیمت نے پوری دنیا کے نظام کو ترتیب دیا۔ ایک سکہ، ایک طاقت، اور اس طاقت کی کشش نے دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ سکے نہ صرف تجارت کا ذریعہ بنے بلکہ ان کی شکل میں ایک نیا خواب پروان چڑھنے لگا۔ ہندوستان اور چین جیسی قدیم تہذیبوں میں بھی 6 صدی قبل مسیح میں سکوں کا استعمال عروج پا چکا تھا۔ ہندوستان اور چین میں سکوں میں چھید کے ذریعے اس کی قدر کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ سکے دھاگے یا رسی کے ذریعے باندھے بھی جاتے تھے اور ان کی نقل و عمل بھی آسان تھی۔ یونانی جزیرے ایجینا پر غالباً پہلا مہر والا سکہ رائج کیا گیا تھا، تاہم سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکے کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، جس پر اس وقت کی لیڈیا نامی سلطنت کی مہر ثبت ہے۔ اس کرنسی کو لیڈیا میں بطور قومی کرنسی استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا۔ اس طرح یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ شاید یہ دولت ہی تھی کہ سلطنت فارس نے لیڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ سکے کی اہمیت کئی صدیوں تک قائم رہی اور دنیا بھر میں اس کا استعمال کیا جاتا رہا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حکومتوں نے اپنے سکے جاری کیے اور ان کی قیمت کو منظم کرنے کے لیے معیار متعارف کرایا۔ تقریباً 3000 سال قبل
81 चीन में जदीद करेंसी की जानिब एक कदम आगे बढ़ाया गया। यहाँ छुरे, कुल्हाड़ियाँ, जानवरों की खालों या दीगर अजनास के बजाय इन चीजों की अलामतों का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी असल चीज देने के बजाय उसका एक अक्स। जैसे जैसे तिजारत फैली, ज्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब तांबा नायाब हो गया। लेकिन इससे भी अहम नुक्ता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथ में होना जरूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि इनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में जाया हो जाए। उन्होंने एक कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नए सिक्के इतने वजनी थे कि जब ज्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती या पैसा दूर लेकर जाना होता तो बैल, गाड़ी या खच्चर इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से ही ताजरों ने पहली बार कागज की करेंसी का तजुर्बा शुरू किया। यूं चीन ही में करेंसी के इर्तिका में एक और कदम बढ़ाया गया और 7वीं सदी के दौरान जियावजी नामी कागजी करेंसी का आगाज किया गया, जो सोंग सल्तनत ने जारी की और करेंसी के निजाम को काबू में कर लिया ताकि ताजर अपनी करेंसी का इस्तेमाल न कर सकें। यूं पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज हुआ। 13वीं सदी में जब मार्को पोलो चीन गए तो तब तक वहाँ पिछले 1800 बरस से कागज बतौर करेंसी इस्तेमाल हो रहा था। यूरोप 17वीं सदी तक धाती सिक्कों को ही करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। ताहम यूरोप में 17वीं सदी में बैंक नोट की सूरत में कागजी करेंसी का इस्तेमाल आम हुआ। सिक्के की जगह कागजी करेंसी ने मुआशी लेन देन में तेजी लाई। ये आसानी से मुंतकिली के काबिल थी और इस पर हुकूमत की जमानत होती थी, जो इसकी कीमत को मुस्तहकम करती थी। कागजी करेंसी की आमद के साथ बैंकों की अहमियत बढ़ गई। बैंकों ने करेंसी की पैदावार और कर्जों की फराहमी का अमल शुरू किया, जो मईशत की तरक्की के लिए अहम साबित हुआ। कागजी नोट धीरे धीरे एक मयार बन गए और यूं धाती सिक्के रफ्ता रफ्ता खत्म होते चले गए। कीमती धाती सिक्कों के खात्मे के बावजूद कागजी नोट की कदर सोने और चांदी के हवाले से भी मंसूब रही। ताहम दूसरी आलमी जंग के बाद अमरीकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए मयार बन गया। यूरोप और दुनिया भर की करेंसी अब भी अपनी कदर का तयन अमरीकी डॉलर की निस्बत से करती हैं, जबकि अमरीकी डॉलर की कदर सोने की कदर से जुड़ी रही। 20वीं सदी में इक्तिसादी वुसअत दुनिया में मौजूद मजमूई सोने के हुजम से जायद हो गई, तो 1971 में अमेरिका ने डॉलर के लिए सोने की कदर को बतौर मयार इस्तेमाल करना तर्क कर दिया। सोने के मयार के खात्मे के बाद करेंसी की कदर का इन्हिसार अफराते ज़र और इक्तिसादी कारकर्दगी से नत्थी हो गया। यानी अब आपके हाथ में इस वक्त रुपए का जो ये नोट है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने मुल्क की मजमूई इक्तिसादियात का एक टुकड़ा है। 20वीं सदी के आखिर में डिजिटल पेमेंट्स की इब्तिदा हुई। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ने रवायती माली निजाम को नया रुख दिया। इंटरनेट के फैलाव ने मालियाती निजाम में भी इनकलाब बर्पा किया। लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे और बैंकों ने अपनी खिदमात को ऑनलाइन मुंतकिल किया। इस दौरान डिजिटल करेंसी के तस्वुर ने भी जन्म लिया, लेकिन दुनिया रुकती नहीं। टेक्नोलॉजी ने एक और तब्दीली की राह हमवार की। 2008 में बिटकॉइन की शक्ल में करेंसी का नया दौर आया, जो न हुकूमत की गिरफ्त में थी न किसी बैंक की। ये एक नया ख्वाब था जो कंप्यूटर की कोडिंग और रियाजती फार्मूलों की मदद से वजूद में आया। तो बेसिक डिफरेंस क्रिप्टो करेंसी और नॉर्मल करेंसी में ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिजिटल और डिसेंट्रलाइज होती है। ये कंट्रोल बाय डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क से की जाती है। इसमें लिमिटेड रेगुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये इसकी डिटर्मिनेशन जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होती है और ये मोस्टली जो है इसका इस्तेमाल ऑनलाइन किया जाता है और नीश मार्केट के लिए इस्तेमाल होती है। बिटकॉइन ने साबित किया कि पैसा अब सरहदों में कैद नहीं, इस पर पूरी दुनिया के लोगों का मुश्तरका हक है। आज क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया को एक नई हकीकत से रूशनास कराया है, जहां हर फर्द अपने पैसों पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो हर लेन देन को महफूज, शफाफ और काबिल एतमाद बनाती है।
क्रिप्टो करेंसी ने साबित किया कि पैसा अब सरहदों से आजाद है। हर मुल्क, हर हुकूमत और हर बैंक से मावरा ये सिर्फ इंसानों का पैसा है। क्रिप्टो करेंसी को दुनिया भर में मौजूद इसके इस्तेमाल कुनिंदा ही कंट्रोल करते हैं। डेवलपर्स इस सॉफ्टवेयर को मजीद बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन वो इस करेंसी के प्रोटोकॉल में तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि हर इस्तेमाल कुनिंदा को अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर और वेरिएंट इस्तेमाल करने की मुकम्मल आजादी है। एक दूसरे से मुताबिकत रखने के लिए तमाम इस्तेमाल कुनिंदगान को एक जैसे उसूलों पर पूरा उतरने वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसका बिल्कुल आज़ादाना इस्तेमाल होता है और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, और ये चूँकि डिसेंट्रलाइज है इसलिए इसमें किसी का कंट्रोल भी नहीं है। ये आपका एक किस्म का वॉलेट बन जाता है। उस वॉलेट में आप करेंसी रखते हैं और इसको कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी करेंसी के साथ इसको आप एक्सचेंज किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी इसी सूरत हाल में सही काम करती है जब तमाम इस्तेमाल कुनिंदगान के दरमियान मुकम्मल मुताबिकत हो। यही वजह है कि तमाम इस्तेमाल कुनिंदा और डेवलपर्स इस मुताबिकत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। बिटकॉइन की कदर में तेजी से होते इजाफे के बाद दुनिया भर में बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज मुतारिफ कराई गयी, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन और दीगर ने मार्केट में जगह बनाई। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सहूलत फराहम की, जो क्रिप्टो करेंसी के निज़ाम में मज़ीद इनकलाब लेकर आया। आज दुनिया में 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और इनकी कीमत में होने वाली तेज रफ्तार तब्दीलियां इन्हें आलमी मईशत का नया रहनुमा बना रही हैं। क्या ये करेंसीज हमारे मुस्तकबिल को बदल देंगी? क्या ये एक दिन आलमी मईशत का मरकज बन जाएंगी? ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कहानी इस बात की गवाह है कि पैसा हमेशा तब्दीली के साथ होता है और तब्दीली हमेशा इंसान के हाथ में होती है। अभी भी आप देखें ना कि दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली तो परसेंटेज बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि शायद 10-15% लोग ही होंगे जो इंटरनेट को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। दुनिया की जो ज़्यादातर आबादी है वो तो क्रिप्टो करेंसी से या इंटरनेट जैसी सहूलत से या डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र से या ऑनलाइन बैंकिंग से जो है इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकती। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले वक्तों में, हाँ ये ज़रूर है कि इसका रवाज बढ़ेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक सिक्का या नोट नहीं होता, ये एक ताकत है जो इंसानी माशरती तरक्की की अलामत बनती है। पैसा एक रास्ता है जो हमें वो सब कुछ हासिल करने की ताकत देता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि इंसान का सफर कभी नहीं रुक सका, वो हमेशा नए रास्तों की तलाश में रहा है और शायद यही वजह है कि पैसा आज क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में एक नई समत इख्तियार कर रहा है, जिसका आगाज आज से कई 100 साल पहले चांदी और सोने के सिक्कों से हुआ था। पैसे का सफर चाहे सिक्के की शक्ल में हो या कागजी नोट या फिर क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में, एक बात साबित करता है कि पैसा हमेशा इंसान के इर्तिका का हिस्सा रहता है और इसका सफर कभी रुका नहीं है।